بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. آج سے ہم قرآن عظیم الشان کے سورة الفاتحہ کا نحوی اعتبار سے اجرا کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ نحو کا کام ہوتا ہے زبر زیر پیش لگانا، اور یہ معلوم کرنا کہ یہ چیز اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور معرب ہے یا مبنی ہے۔ تو اسی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں گے کہ سب سے پہلے کہ عبارت کو کیسے حل کرے۔ اجرا کو شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہے وہ کیا ہے کہ عبارت کو کیسے حل کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ دیا کرے، سو نہیں، جی استاد جی۔ جاگ کے بیٹھا کرے۔ جی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عبارت کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو عبارت کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ یا یہ صیغہ، ہر لفظ کو صیغہ کہتے ہیں آسانی کے لیے۔ جو میرے سامنے ہے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ کیا کہا میں نے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے۔ فوراً جواب دیا کرے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اس کو ہم علامات سے پہچانیں گے۔ اس کو ہم کیا کریں گے؟ علامات سے علامات سے پہچانیں گے۔ پہچانیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اسم کے مشہور ترین علامات 3 ہے، ویسے تو 11 ہے، لیکن اسم کے مشہور ترین علامات 3 ہے جو 98% عبارت میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، الف لام شروع میں ہو، آخر میں تنوین ہو۔ نمبر 3، حرف جار داخل ہو۔ اچھا، تو یہ تو ہم مفرد میں یہ بحث استعمال کریں گے، دیکھیں گے کہ مفرد ہے یا نہیں۔ اگر مفرد ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، پھر اس کے علامات دیکھیں گے۔ اور اسی طرح اگر مفرد نہیں ہے تو پھر تو مرکب ہوگا، اور مرکب کی 2 ابتداءً بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب مفید، اور نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا میں نے؟ جی استاد جی۔ کیا کہا میں کہ نے؟ مرکب کی 2 بڑی قسمیں ہیں، اور پھر اس میں سے کون سی قسم ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، یہ توجہ سے سنیں۔ چونکہ مرکب غیر مفید کی معلوم اور متعین 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب بنائی، نمبر 3 مرکب منع صرف۔ اگر انہی میں سے ہو، مرکب اضافی ہو یا مرکب بنائی یا مرکب منع صرف ہو، تو پھر مرکب غیر مفید ہوگا، ورنہ مرکب مفید ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب جی استاد۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ان 3 قسموں میں سے ہمارے سامنے ایک مرکب جملہ آیا؟ اب کیسے پتہ چلے گا کہ مرکب غیر مفید کی یہ کون سی قسم ہے؟ تو اس کی سمجھانے کے لیے بھی میں نے ایک خلاصہ میرے ذہن میں ہے کہ اگر 2 اسم ہوں، پہلے اسم پر نہ الف لام ہو اور نہ تنوین ہو، تو یہ مرکب اضافی ہوگا، یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ اور اگر عدد یعنی گنتی کا ذکر ہو کسی بھی مرکب جملے میں، تو یہ مرکب بنائی ہوگا۔
اور اگر تین کلمات میں سے کوئی بھی ہو، بالا بکا، حضرموت، معدی کرب، تو یہ مرکب منا صرف ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ ہمیں کیسے جی پتہ چلے گا کہ یہ مرکب غیر مفید کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ تینوں میں نے بتا دیے، تینوں میں نے ذکر کیا۔ اب مرکب غیر مفید اگر نہ ہو بالفرض والمحال، اگر تین قسموں میں سے نہیں ہو، تو پھر تو لا محالہ مرکب مفید ہی ہوگا۔ اور مرکب مفید کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ ٹھیک ہے جی، مرکب غیر مفید کی مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں مولوی صاحب؟ دو فوراً سر، جواب دیا کریں حمزہ بھائی، کتنی قسمیں دو ہیں؟ سر، دو قسمیں دو ہیں۔ نمبر ایک مرکب ہے، نمبر ایک جملہ خبریہ، اور نمبر دو جملہ جملہ انشائیہ۔ انشائیہ۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ مرکب مفید یعنی جملہ کی قسم کے کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ جملہ انشائیہ کی مخصوص اور متعین 10 قسمیں ہیں، اگر ان قسموں میں سے ہوئی تو سمجھو کہ جملہ انشائیہ ہے، اور اگر ان میں سے نہیں ہوئی تو سمجھو کہ جملہ خبریہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات حمزہ؟ سب جی توجہ سے جی سن رہے کہ نہیں؟ جی جی استاد استاد جی۔ جی۔ جی، تو جملہ انشائیہ کی مشہور 10 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو جملہ انشائیہ ہوگا، ورنہ پھر جملہ خبریہ ہوگا۔ اب جو جملہ خبریہ ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا شاہ نواز بھائی، حمزہ بھائی، شمسی بھائی، کوئی بتا دے، اس کا جواب دے دے۔ سر کسی جملے کے شروع میں اگر اسم آ جائے تو جملہ اسمیہ ہوگا، اور کسی جملے کے شروع میں فعل آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اعتبار کریں۔ زبردست ہے، یہی جواب ہے۔ اگر شروع میں اسم ہو تو جملہ اسمیہ خبریہ، ورنہ جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ عبارت کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ عبارت کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ تو آج کے دن کے لیے ہم نے اتنا جو پڑھ لیا، اسی کا ہم اجرا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو کسی بھی عبارت کو حل کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے بتایا کہ یہ لفظ یا یہ صیغہ جو میرے سامنے موجود ہے، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ اگر مفرد ہے تو دیکھیں گے کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور اگر مرکب ہو تو پھر دیکھیں گے اچھا اسم فعل حرف میں کیسے فرق کریں گے؟ پہچان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی، ان کے علامات کے ذریعے سے۔ اچھا اگر مرکب ہے تو پھر مرکب کی دو قسمیں، مفید ہوگا یا غیر مفید۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے سامنے جملہ ہے، کون سی علامت سے ہم پہچانیں گے کہ یہ مفید ہے یا غیر مفید؟ اگر مرکب غیر مفید کی چونکہ متعین اور مخصوص تین قسمیں ہیں، اگر ان میں سے ہو پھر تو مرکب غیر مفید ہوگا، اور اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر وہ مرکب مفید ہوگا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ ان تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو وہ بھی آسان ہے کہ اگر دو اسم اکٹھے ہو، پہلے اسم پر نہ الف لام ہو اور نہ تنوین ہو، اور دوسرا اسم مجرور اور مکسور ہو، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی ہے۔ اور اگر کسی بھی مرکب جملے میں گنتی کا ذکر ہو تو سمجھو کہ مرکب بنائی ہے۔ اور اگر تین الفاظوں میں سے کوئی ایک ہو، پالبکہ، حضرموت، معدی کرب، تو مرکب منا صرف ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جی استاد جی، اور اگر مرکب غیر سمجھ آ رہی مفید، میں نے کہا تھا نا کہ نوٹ بک آپ لے لیا کرے، یہ چیزیں بعد میں میرے بھی ذہن میں خاکہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں۔
अब अगर मुरक्कब गैर मुफीद ना हो फिर तो लामहला क्या होगा मौलवी साहब? क्या मुरक्कब बताएं? मुफीद। मुरक्कब मुफीद होगा। अब मुरक्कब मुफीद की इब्तिदान दो किस्म है। मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं, और जुमले की दो किस्में, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। कैसे पता चलेगा कि ये जुमला खबरिया है या इंशाइया है? अगर जुमला इंशाइया हो, अगर जुमला इंशाइया की चूंकि मखसूस 10 अकसाम है, अगर उनमें से कोई भी होगा तो जुमला इंशाइया होगा, वरना फिर जुमला खबरिया होगा। फिर जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। समझ आ रही है बात? जुमला इसमिया खबरिया और जुमला फेलिया। अगर शुरू इसम से हो, किसी भी मुरक्कब जुमले का की इब्तिदा इसम से हो, इसम से हो तो जुमला इसमिया कहते हैं, और अगर फेल से हो तो जुमला फेलिया कहते हैं। तो ये मुख्तसर हमने चीजें पढ़ ली। अब हम इनका इजरा करेंगे उसमें। ये अपने सबक के अंदर जो जो सामने आएगा तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ जिक्र करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले एक और चीज भी आप समझ लीजिएगा, जो कि जरूरी है। जो मुरक्कब इजाफी है ना, उसके पहले जिसको मुजाफ और दूसरे जिसको क्या कहते हैं, मुजाफ इलैहि है। मुजाफ। हाँ। और जो जुमला खबरिया है, जुमला खबरिया उसकी कितनी किस्में मैंने बताई, जरा दो। जल्दी बोले। दो किस्में कौन कौन दो सी किस्म। किस्में? जुमला इसमिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। हाँ, जुमला इसमिया खबरिया और जुमला फेलिया खबरिया। जो जुमला इसमिया खबरिया है, जब भी जुमला इसमिया खबरिया आ जाए, यानी जिस जुमले की इब्तिदा और शुरू इसम से हो तो वो जुमला इसमिया खबरिया होगा। तो जब भी जुमला इसमिया आ जाए, उसमें दो चीजों का होना जरूरी है। एक मुस्नद इलैहि है, मुब्तदा, और दूसरा मुस्नद और खबर। उसमें दो चीजों का होना क्या है मौलवी साहब? जरूरी जरूरी है। है। एक मुस्नद इलैहि है, मुब्तदा, और दूसरा मुस्नद खबर। पहले जिसको मुस्नद इलैहि है, मुब्तदा कहते हैं, और दूसरे जिसको मुस्नद और खबर कहते हैं। और जुमला फ़ेलिया में भी, अगर जुमला फ़ेलिया किसी भी जुमले की इब्तिदा फेल से हो तो उसमें भी दो अज्जा का होना जरूरी है। तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कि पहले जिसको हम मुस्नद फेल कहते हैं, और दूसरे जिसको मुस्नद इलैहि है फाइल कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जुमला जुमला इसमिया है या फेलिया है। अगर इसमिया हो तो उसमें हम मुब्तदा खबर यानी मुस्नद इलैहि है और मुस्नद बनाएंगे, जिसको मुब्तदा और खबर भी कहते हैं। और अगर जुमला फेलिया हो तो उसमें हम फेल और फाइल बनाएंगे। अगर मफुल बही मौजूद हुआ तो उस वो भी बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये चीजें अहम थी जो आप हजरात को मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह। हाँ, ये बा का जो है ना, बा, बा हर्फ जर, इससे हम शुरू करते हैं। कोई साथी कर लेगा इजरा? बा क्या है? हमने इस तरह शुरू करना है कि ये देखो, हमने शुरू से मैंने बताया कि हमने जितना पढ़ा हम वो इसी में जारी करेंगे। अब देखो, बा हर्फ है, बा लफ्ज है, बाजिर बे ये लफ्ज है। क्या है मौलवी साहब? लफ्ज। लफ्ज है। हाँ, और लफ्ज में कौन सा लफ्ज है? लफ्ज मौजू है या मुहमल है? ये मोमल है। ये यानी इसका कोई माना नहीं है। मौजू। हाँ, लफ्ज मौजू है। कुरान में को बेमाना लफ्ज कहाँ से आए शाहनवाज भाई? तो बा हर्फ जार, बा हर्फ जार है, लफ्ज है, लफ्ज मौजू है। क्या है मौलवी साहब? लफ्ज लफ्ज मौजू। लफ्ज मौजूद। मौजू। और उसके बाद मुफरद है या मुरक्कब है? ये मुफरद है। मुफरद है। मुफरद है। और फिर मुफरद
की कितनी किस्में हैं मौलवी साहब? मुफरत की दो किस्में हैं। मुफरत की 3 किस्में हैं। कोई और भी बोला करे अल्लाह वालों। मुफरत मुफरत की की तीन तीन किस्म। किस्में हैं, कौन कौन सी? इसम, फेल, हरफ। मुफरत को कलमा भी कहते हैं, और कलमा की फिर आगे 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हरफ। तो अब हमने इसमें ढूंढना है, चूंकि ये लफ्ज मुफरद है, अब हमने इसमें ढूंढना है कि ये मुफरद है या मुरक्कब है। तो बा चूंकि मुफरद है, और मुफरद का दूसरा नाम क्या है मौलवी साहब? कलमा। 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 और कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी, जल्दी बोला करें। इसम इसम, फेल इसम फेल और हरफ। फेल हरफ। 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 तो ये बा कौन कौन सा है इन 3 किस्मों में से? बा हर्फ हरफ है। दूसरा। बा जर हरफ है। है। और बा क्या है? हरफ है। बा हरफ क्या है। है? हरफ है। अब हमारा काम फिलहाल इतना ही है। पहले हम एक एक लफ्ज की तहकीक करेंगे, तो अब हमें पता चला कि ये हरफ है बा। बा क्या है? हरफ है। हरफ है। हाँ। अच्छा, आगे लफ्ज अच्छा, आगे और भी इसको समझ लीजिएगा कि हरूफ फिर 2 किस्म के होते हैं, एक आमिल होते हैं और एक गैर आमिल होते हैं। जो गैर आमिल हरूफ होते हैं, जो अमल नहीं करते। अमल ना करने का क्या मतलब है कि वो किसी भी जुमले के अंदर लफ्जों में कोई अमल नहीं करता, ना जबर देता है, ना जेर देता है, ना पेश देता है। तो ये बा हर्फ जार है, ये हरूफ आमिला में से है। बा कौन से है? हरूफ आमिला में से। मामला में। और हरूफ आमिला की 3 किस्म है। हरूफ आमिला की 2 किस्म है। एक हरूफ आमिला दर इसम, और एक हरूफ आमिला दर फेल। तो ये जो बा हर्फ जार है, ये हरूफ आमिला दर इसम है, लफ्ज इसम पर दाखिल है। किस पर दाखिल है? लफ्ज लफ्ज इसम इसम पर। पर दाखिल और है। लफ्ज इसम के बारे में आप तहकीक करें, आप बताएं कि ये कौन सा है, इसकी भी तहकीक करे, इजरा कर ले, बता दे। लफ्ज इसम ये लफ्ज है, फिर हाँ। लफ्ज मौजू है, हाँ। फिर हाँ। मुफरद है। मुफरद है, मुफरद ठीक। में फिर उसमें से इसम है। इसम की अलामत ये है कि इसमें बाहर पे जार से मिला हुआ है शुरू हाँ, में। इसके ऊपर अलामत इसम में 11 अलामत इसम में से इसमें यह अलामत पाई जाती है कि इसके ऊपर हर्फ जार दाखिल है। ठीक है। हर तरफ से। हाँ, और ये मुजाफ भी है। हर्फ जार दाखिल है, और ये क्या है? मुजाफ भी है, लफ्ज अल्लाह की तरफ। ठीक है जी। अब हम ठीक है। आते हैं। हाँ, तो ये हमारी तहकीक इस पर भी हो गई कि लफ्ज इसम लफ्ज है, लफ्ज मौजू है, मुफरद है, कलमा है, इसम है। और अलामत इसम इसमें यह है कि हर्फ जर भी दाखिल है, और यह मुजाफ भी है। अच्छा, और अब तीसरी जो अलामत है, तीसरा जो लफ्ज है, लफ्ज अल्लाह, इसके बारे में बताइएगा साथी। लफ्ज अल्लाह ये लफ्ज मौजू है। और हाँ। ये कलमा की 3 किस्मों में से इसम है। हाँ, नहीं, और मुफरद है, इसमें पहले ये बोला करे मुफरद है। हाँ मुफरद, ये मुफरद है। और कलमा पहले है। मुफरद को कलमा भी कहते हैं। और कलमा की 3 किस्मों में से ये इसम है। और जी। इसम की जो इस अलामात है उसमें से इसके अंदर शुरू में अलिफ लाम है। जी, शुरू में अलिफ लाम है, माशाल्लाह। ठीक है। अर्रहमान, अर्रहीम, इसमें भी यही इजरा होगा। कोई साथी कर ले अर्रहमान में। लफ्ज है। और लफ्ज रहमान। मुफरद है। मुफरद में से इसम मुफरद की 3 किस्में, इसम फिल हर्फ उसमें से इसम है। और इसम की अलामत ये है कि उसमें अलिफ लाम शुरू में दाखिल है। शुरू में यही अर्रहीम में भी है। ठीक है जी। ये हो गया इसके हर हर लफ्ज का इजरा। जी। जी। हर हर लफ्ज का इकट्ठा इजरा हो गया, जहां तक हमने पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि जिस तरह के मैंने बताया कि ये बा हर्फ जार है, तो ये कायदा और ज़ब्ता याद रखे कि हर्फ जार जिस लफ्ज पर दाखिल हो जाए उसको मजरूर कहते हैं। मैंने कवायद जवाबित में बताया भी है वहां पर
कि जिस लफ्ज पर हर्फ जर, जिस इसम पर हर्फ जर दाखिल हो जाए उसको क्या कहते हैं? मजरूर। और जार मजरूर मिलकर हमेशा ये मुतअल्लिक बनते हैं। क्या बनते हैं मौलवी साहब? मुतअल्लिक। मुताल्लिक। हाँ। और जिसके मुतअल्लिक होते हैं उसको मुतअल्लक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुतअल्लक। मुताल्लिक। हाँ, ये बातें नोट कर लिया करें। जो रह जाए वो बाद में मुझे मैसेज करे या पर्सनल में या ग्रुप में, वो आप तहकीक करा सकते हैं कि बाहर पे जार है, और बाहर पे जार या कोई भी हर्फ जार जिस लफ्ज, जिस इसम पर, जिस कलमा पर दाखिल हो उसको मजरूर कहते हैं। और जार मजरूर जब आपस में मिल जाए तो वो मुतअल्लिक होते हैं। वो क्या होते हैं? मुतअल्लिक। और मुताल्लिक। जिसके मुतअल्लिक होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुतअल्लक। मुताल्लिक। हाँ, उसको क्या कहते हैं? मुतअल्लक। अब अगर जार मजरूर का मुतअल्लक अल्फाज में मौजूद हो इबारत के अंदर, फिर तो हम उसी का मुतअल्लिक करेंगे। हम फिर उसी के मुतअल्लिक करेंगे। और अगर अल्फाज में इबारत में मौजूद ना हो तो फिर हम उसके लिए मुतअल्लिक निकालेंगे, उसके लिए मुतअल्लक निकालेंगे। क्या निकालेंगे। करेंगे मौलवी साहब? उसके लिए हम, मुताल्लिक निकालेंगे तो हाँ, बनाएंगे उसको। मुतअल्लक हम उसके लिए निकालेंगे। अब जार मजरूर किसके मुताल्लिक होते हैं, ये अगला सवाल है। जार मजरूर किसके मुताल्लिक होते हैं? जुमले में हमें, हमने किस लफ्ज के साथ इसको मुताल्लिक करना है और इसका मुताल्लिक कौन होगा? तो हमेशा याद रखें कि जार मजरूर ये मुताल्लिक होते हैं फेल के, इसमें फाइल के, इसमें मफऊल के, सिफत मुशब्बा के, इसमें तफजील के, मजदर के, जरफ के। ठीक है जी, ये इनके मुताल्लिक होते हैं। जार मजरूर क्या करते हैं? ये मुताल्लिक मुताल्लिक। होते हैं किसके? फेल के, इसमें फाइल के, इसमें मफूल के, सिफत मुशब्बा के, इसमें ज़र्फ के, इसमें आला के, इसमें तब्जील के, और मजदर के। ठीक है जी। जी उस्ताद। हाँ, अगर इन अल्फाज में से, इन कलिमात में से, इन अशिया में से कोई अगर मौजूद हो तो फिर जार मजरूर हम इसका मुताल्लिक, इनका मुताल्लिक करेंगे। और अगर इनमें से कोई भी मौजूद ना हो तो हम इनके लिए मौका महल के मुताबिक, अगर जुमला फ़ेलिया हो तो हम फेल निकालेंगे, और अगर जुमला इस्मिया हो तो फिर हम इसके लिए इस्म निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? इसम इस्म निकाल। निकालेंगे। इसम निकालेंगे। हाँ। अच्छा, जो हम निकालते हैं जार मजरूर का, जो मुताल्लिक हम निकालेंगे अगर मौजूद ना हो तो वो या फेले आम होगा या फेले खास होगा। क्या होगा मौलवी साहब? फेले आम या फेले खास। पहले या फेले आम होगा आप या होगा। फेले खास होगा। अच्छा, अगर फेले खास निकालना है मौका महल के मुताबिक तो वो चार है: सबता, हसला, वजदा, काना। सबता, हसला, वजदा, काना। बोले एक दफा, क्या निकालेंगे? सबत, हसल, वजद, काना। काना। ये फेले आम है। ये क्या है? फेले आम है। आम। इसको फेले आम कहते हैं, ये फेले खास नहीं है। और अगर कोई खास मौका पर, कोई खास मौका और महल हो तो उस मौका महल के मुताबिक देख के हम फिर जार मजरूर का मुतअल्लक, फिर वो फेले खास निकालेंगे। वो कौन को, वो क्या है? कभी अशरा होगा, कभी अबतदे होगा। समझ आ रही है बात? जी उस्ताद। कभी आकुल होगा। आपने गाना शुरू करना है तो आपने ये कहना है कि अशराओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। आपने तिलावत शुरू करनी है तो अशराओ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए हम अशरा निकालेंगे। आपने अगर कोई काम शुरू करना हो तो अब्तदे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अगर कोई गाना शुरू करना हो, खास गाना, तो या जैसे कैसे भी हो, तो आकुलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। तो ये जी सर। हमेशा के लिए याद रखें। अब हम चूंकि तिलावत शुरू करने वाले हैं, तो बाहर पे जार है और इसमें क्या है, मजरूर। तो ये जार मजरूर मिलकर ये फिर क्या बनते हैं, मुताल्लिक किसके हम बनाएंगे, अशराफ है। अशरा और फेल के। ठीक है, अब्तदा के भी बना सकते हैं, क्योंकि हम कुरान पाक की तिलावत शुरू करने लगे। अब इसकी पूरी तरकीब हम करते हैं। बाहर पे जार, लफ्ज ये इसमें मुजाफ है। इसमें क्या है, मुजाफ। मुजाफ है। मुजाफ। कैसे पता चला कि ये मुजाफ है और ये दूसरा मुजाफ इलैहि है, लफ्ज अल्लाह? कौन बताएगा? मैंने अलामत बता दिए हैं। क्योंकि उसका जी ये जो इसम है ये नकरा है, इस पर अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, और उससे हाँ, आगे ये जो पहला इसम जो है, लफ्ज इसम, इस पर ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है। और जिस दो इसम अगर इकट्ठे हो जाए, उनमें से पहले इसम पर ना अलिफ लाम और ना तनवीन हो, और दूसरे इसम पर दूसरा इसम मजरूर यानी मकसूर हो, तो वो आपस में क्या बनते हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह। अच्छा, तो बा हर्फ जार, साथ साथ बोला करे, बा हर्फ जार। जर। और बाफजर। लफ्ज इसम मुजाफ। लफ्ज इसम क्या है, मुजाफ। 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 और लफ्ज अल्लाह क्या है, इसके बाद मौसूफ। अर्रहमान मुजाफ अर्रहीम इलैह। है। अच्छा, ये भी याद रखिए कि अगर दो मारिफ है, दो इसम हो एक जगह पे, और दोनों मारफा हो या दोनों नकरा हो, दोनों पर जबर हो, दोनों पर पेश हो, समझ आ रही है? जी सर। जी हाँ, सर। दो इसम आ जाए आपस में, और दोनों के एराब एक जैसे हो, और मुफरत तस्निया जमा में एक जैसे हो, यानी दोनों वाहिद हो या तस्निया या जमा हो, दो चीजें हो गई। और दोनों मुजक्कर हो या दोनों मुअन्नस हो, तीन चीजें हो गई। और नंबर चार, दोनों पर जबर हो या जेर हो या पेश हो, यानी दोनों मरफू हो या मंसूब या मजरूर। तो ये चार चीजें अगर किसी भी दो इसमों में बराबर आ जाए, तो समझो कि वो मौसूफ सिफत है। वो क्या है हमजा भाई? मौसूफ सिफत। हाँ, मौसूफ तो लफ्ज सिफत। अल्लाह देखो, वो भी मारफा है। अर्रहमान भी मारिफा है। मारफा है, अर्रहीम भी मारफा मारिफा है। है। लफ्ज अल्लाह पर भी जर है, मजरूर है। अर्रहमान भी मजरूर है, अर्रहीम भी मजरूर है। मजरूर कहते हैं मकसूर को, मकसूर कहते हैं कि जिस पर जेर हो, जिस लफ्ज के नीचे, जिस कलमा के नीचे जेर हो। तो लफ्ज अल्लाह भी मजरूर है, अर्रहमान भी मजरूर है, अर्रहीम भी। और दोनों मारफा है, और दोनों मुजक्कर है। ठीक है जी, दोनों क्या जी है, सर। मुजक्कर है। मुजक्कर क्यों है? क्योंकि मुअन्नस की अलामत इसमें नहीं पाई जाती। अब हम इस पर हुक्म लगाएंगे कि ये क्या है, मौसूफ सिफत है। क्या है मौलवी साहब? मौसूफ मौसूफ। सिफत। मौसूफ सिफत। हाँ, तो बाहर, और ये याद रखे कि मौसूफ एक हो, उनके कई सिफात हो सकते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों सिफात भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज अल्लाह है, तो ये अल्लाह ताला के तो अनगिनत सिफात है। ठीक है जी, अनगिनत जी सर। सिफात है, बेशुमार सिफात है। तो आप देखें, बाहर फेजार, लफ्ज इसम मुजाफ, लफ्ज अल्लाह मौसूफ, लफ्ज अल्लाह मौसूफ। मौसूफ। अर्रहमान सिफत अव्वल। सिफत अव्वल, अर्रहीम सिफत सिफत सानी। सानी। मौसूफ अपनी दोनों सिफात से मिलकर क्या बनेगा, पीछे इस लफ्ज इसमें के लिए मुदाफ इलैह। मुजाफिल है। फिर मुजाफ मुजाफिल मिलकर बाहर फिजार के लिए क्या बनेगा, मजरूर। 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 जार मजरूर मिलकर, आप बताए शाहनवाज भाई, कि जार मजरूर जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, मुतालिक। मुताल्लिक बनते हैं। अब मैं मुताल्लिक के बारे में मैंने बताया कि अगर लफ्जों में मौजूद हो फेल,
اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم आला، اسم तफजील, सिफत मुशब्बा और मजदर। अगर ये मौजूद हो तो फिर तो उस वो इनके वो इसका मुताल्लिक हो, मुताल्लक बनेगा। और अगर वो मौजूद ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, मौका महल के मुताबिक फेल आम या फेल खास निकालेंगे। क्या करेंगे मौलवी साहब, फेल आम फेल आम फेल या खास फेल खास निकालेंगे। निकालेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, चूंकि हम कुरान शुरू करने लगे हैं तो हम क्या निकालेंगे, लफ्जों में मौजूद नहीं है फेल खास। जी, क्या निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, जार मजरूर मिलकर, हाँ, अशराउ। अशरा, जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएंगे किसके, अशरा और फेल के। अशराउ को। अब अच्छा अशरा जी, और सही। फेल है और आना जमीर उसमें फाइल है। मैं शुरू करता हूं तो चूंकि फाइल मैं हूं इसी वजह से हमने आना निकाला। अशरा और फेल है। मैंने बताया था कि कोई भी जब ये अशरा हो गया तो फिर ये जुमला फेली या खबरिया हो गया। कौन सा जुमला हो गया मौलवी साहब, जुमला जुमले फेलिया क्योंकि हो फेलिया गया। हर खबरिया। जुमले की इब्तिदा जब फेल से हो तो वो क्या होता है, जुमला फेलिया। जुमले फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया। अब जब ये हो गया जुमला फेलिया खबरिया तो जरूरी है उसमें कितने अज्जा जरूरी है उसमें, दो। दो, दो। कौन कौन से, मुस्नद और मुस्नद मुस्नद इलैह। और मुस्नद इलैह। हाँ, उसमें फेल फेल और और फाइल। फाइल। मुस्नद मुस्नद इलैह भी कह सकते हैं। ये भी कहा करे कि मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह फाइल, ताकि जरा फर्क हो जुमला इस्मिया के साथ। उनमें कौन कौन से अज्जा होंगे, मुस्नद फेल और मुस्नद इलैह फाइल। तो अशरा व फेल, अशरा व मुस्नद फेल और आना जमीर इसमें मुस्नद इलैह है फाइल। फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर, किससे मिलकर, मुताल्लिक। मुताल्लिक मुतालिक। से मिलकर क्या बनेगा, जुमला फ़िअलिया खबरिया, जुमला फ़िअलिया खबरिया। बढ़िया। समझ में आ रही है ये बात। जी उस्ताद जी। इसको जुमला इंशाइया भी कह सकते हैं, जुमला फ़िअलिया इंशाइया, और जुमला फ़िअलिया खबरिया भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को पता ना हो तो उसको के लिए जुमला खबरिया है, और अगर किसी को पता हो तो उसके लिए जुमला इंशाइया है। दुआइया कलिमात या अल्लाह ताला के इस तरह के सिफाती कलिमात वगैरह, वो जुमला इंशाइया भी आप समझ सकते हैं, उसको जुमला इंशाइया भी ले सकते हैं। तो कोई साथी इसकी तरकीब सुना दे जरा। बा हर्फ जार, हाँ। इस्म मुजाफ, लफ्ज हम्म, अल्लाह मौसूफ, हाँ। अर्रहमान सिफत अव्वल, अर्रहीम सिफत सानी। हाँ। मौसूफ अपनी दोनों सिफात से मिलकर मुजाफ इलई, हम्म। मुजाफ अपने मुजाफ इलई से मिलकर जार का मजरूर, जार मजरूर मजरूर, मिलकर हाँ, मुजाफिल मिलकर मजरूर। मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक होंगे अशरफ फेल के। हाँ अशरफ फेल इसमें ही अन ज़मीर फाइल, फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया इंशाअल्लाह हो। जी, ठीक है जी। जुमला फ़िअलिया इंशाइया लफ्ज़न, और जुमला जुमला फ़ेलिया खबरिया लफ्ज़न, और जुमला फ़ेलिया इंशाइया मानन, ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी। शाहनवाज भाई आप सुना दें। बा बा हर्फ जार। जार। जी। इसमें मजरूर। अ, नहीं। लफ्ज अल्लाह। नहीं, लफ्ज अल्लाह मुजाफ। गलत बोल रहे हो शाहनवाज भाई। बा हर्फ जार। अ, लफ्ज इसमें मुजाफ इतना बड़ा तो नहीं है, एक ही जुमला है। तवज्जो से सुना करें। जब सबक में बैठे तो सिर्फ सबक हो, कोई और काम साथ ना हो तो अल्लाह ताला दिल में डाल देते हैं। जी उस्ताद जी। इसमें मुजाफ, लफ्ज अल्लाह
موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ موصوف صفت مل کر مضاف اسم کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر با حرف جار کے لیے مجرور، جی با حرف جار جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشرع فعل کے، اشرع فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ اچھا، فعلیہ انشائیہ۔ ہاں، جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور جملہ فعلیہ انشائیہ معنن۔ معنی کے اعتبار سے ہم چونکہ اس پر جھوٹ اور سچ کا وہ نہیں کر سکتے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں حمزہ بھائی، جی استاد جی۔ کہ فعل اپنے فاعل اور متعلق، اشرع و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ کیا بنا؟ کل ملا کے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے۔ مرکب، مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب مفید۔ ہاں، مرکب مفید کی کون سی قسم ہے؟ جملہ خبریہ۔ ہاں، جملہ، اور جملہ خبریہ کی کون سی قسم ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشرع و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مرکب، مرکب مفید، جملہ، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ فعلیہ۔ خبریہ، اس انداز سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جی استاد جو مفرد مرکب کا ہم نے بحث پڑھ لیا، وہ سارا اس میں ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جی۔ یہی وجہ ہے شاہ نواز بھائی، حمزہ اور جی ملک صاحب، یہی وجہ ہے کہ ہم بسم اللہ میں یہ کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہی وجہ ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ہاں، یہ شروع کرتا ہوں کا لفظ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اسی وجہ سے۔ اگلا ہمارا سورہ فاتحہ کا پہلا الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلا ہمارے سامنے الحمد، لفظ الحمد ہے، الحمد، اس کا الگ ہم نے اجرا نکالنا ہے۔ تو آپ حضرات، کوئی آپ میں سے کوئی ساتھی اس کا اجرا کر کے دکھا دے۔ اس کا ذرا تحقیقی۔ ہاں بالکل، الحمد شروع سے نکالے۔ الحمد لفظ، پھر لفظ موضوع ہے، ہم، پھر مفرد ہے، ہم، مفرد کی تین قسموں میں سے اسم ہے، ہاں، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ ہاں، الف لام ہے اور مسند الیہ ہے۔ منزلہ ہی ہے۔ ہاں، مسند مبتدا۔ الیہ، ہاں، مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا مسند الیہ، اور آگے للہ ہے میں لفظ لام حرف جر، اس کی بھی تحقیق پر ذرا بتا دیں۔ لام لفظ ہے، پھر لفظ موضوع ہے، پھر اس کی مفرد ہے، مفرد میں سے تین قسمیں اسم فعل حرف، حرف اس کی قسم حرف ہے، اور بس حرف ہی ہے۔ ہاں، اور حروف کی حروف دو کی دو قسموں قسموں میں میں، سے حروف عاملہ ہے، حروف غیر عاملہ اور حروف عاملہ، یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ جی، اور حروف عاملہ کی دو قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ حروف عاملہ در اسم اور حروف عاملہ حروف در عاملہ در در، حروف عاملہ در اسم ہے۔ ہاں، حروف عاملہ در اسم ہے، اور حروف عاملہ در اسم میں سے حرف جار ہے، کیا ہے؟ حرف جار، اور اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ لفظ ہے، پھر لفظ میں سے لفظ موضوع ہے، مفرد ہے، اسم ہے، اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور دوسری یہ کہ یہ جار مجرور، حرف جر داخل ہے اس کے شروع میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔
और रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो लफ्ज अल्लाह के नीचे जेर क्यों है? लाम हर्फ जर की वजह से, लाम हर्फ जर है, लफ्ज अच्छा, अल्लाह मजरूर है। रब्बिल आलमीन, रब क्या बन रहा है? रब लफ्ज है, लफ्ज में से मौजू है, फिर मुफरद है, उसमें इसम है। इसम की अलामत ये है कि यहाँ पर मुजाफ हो रहा है, हाँ, मुजाफ इसम की मुजाफ है। अलामत। ठीक है, मुजाफ है। ठीक है। और अल आलमीन। अल आलमीन ये लफ्ज है, लफ्ज मौजू है, फिर उसमें से लफ्ज मौजू जमा है। जमा की अलामत ये है कि उसके आखिर में या और नून है। जी, अलिफ लाम भी है ना इसमें दाखिल? अलिफ इसम अलिफ भी है। लाम है। अल, अलिफ लाम है। ये जमा है, पहले तो उससे जमा कहेंगे, फिर कहेंगे इसम है। एसम है। एसम क्यों है? इसम है एसम कि अलिफ लाम इसके होने की साथ है। दो वजह है, शुरू में अलिफ लाम है और जमा है। शुरू में अलिफ लाम अलिफ हो लाम है और जमा है, ये दो वजह है। ठीक है। जी। ठीक है। आगे अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान में भी अल आलमीन की तरह है, अर्रहीम में का बेजरा भी इसी की तरह है। ठीक है जी। जी उससे हाँ, और फिर आगे है मालिके यौमिद्दीन। मालिक इसका की, जी, मालिक की लफ्ज है, लफ्ज मौजू है, फिर लफ्ज मौजू में से मुफरद है, मुफरद में से इसम है। इसम के अलावा ये है कि ये भी यहाँ पर मुजाफ वाक़ हो रहा है। ये अलामत इसम क्या है? मुजाफ है। ठीक है। मुजाफ यौम भी इसी तरह ये भी मुजाफ वाक़ हो रहा है उससे जी। जी, मुजाफ भी है और मुजाफ इलैह भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसम, मुजाफ इलैहि भी है। अलामत इसम मुजाफ है। और अद्दीन, जी। शाहनवाज भाई, अद्दीन अद्दीन। लफ्ज, लफ्ज मौजू। हम्म, लफ्ज है और लफ्ज मौजू है, और लफ्ज मौजू है और मुफरद है। मुफरद की किस्मों में से ये इसम है, और इसम के अलामात में से ये है कि इसके शुरू में अलिफ लाम है। अलिफ लाम है। ठीक है। ये तो हो गया इनफरादी एक एक लफ्ज की तहकीक है, इसम फेल हर्फ के एतबार से। अब इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये मुरक्कब बन जाएगा। फिर कौन सा मुरक्कब है कौन सा नहीं है, तो ये हमारे पास पूरा एक जुमला है। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये पूरा एक ही जुमला है। ये जो तीन आयत है, ये पूरा मिलके एक जुमला है। तो ये सारा मिला के ये क्या बनता है मौलवी साहब? मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब। मुरक्कब बनता है। क्या बनता है? मुरक्कब। मुरक्कब की कौन सी किस्म बनेगी? मुरक्कब मुरक्कब मुफीद। मुफीद। मुरक्कब मुफीद। कैसे पता चला कि ये मुरक्कब मुफीद है? क्योंकि उसका क्योंकि जी जुमला खबरिया वाक़ हो रहा है और मुब्तदा इसके क्योंकि शुरू में है। क्योंकि मुरक्कब गैर मुफीद की तीन किस्मों में से कोई किस्म भी नहीं है। ठीक है। Yes। तो ला महाला ये क्या होगा? मुरक्कब मुफीद होगा। क्या होगा मौलवी साहब? मुरक्कब मुरक्कब मुफीद। मुफीद होगा। मुरक्कब मुफीद होगा। जब मुरक्कब मुफीद है तो मुरक्कब मुफीद के का दूसरा नाम क्या है? मुरक्कब जुमला। मुफीद का दूसरा नाम जुमला। तो ये जुमला की कौन सी किस्म है? जुमला जुमला खबरिया या खबरिया। इंशाइया? खबरिया। जुमला खबरिया है। जो कैसे पता चला कि जुमला खबरिया है? इसके शुरू में क्योंकि मुस्नद जुमला इलैह ऐसा है कि मुबतदा है। 10 किस्मों में से कोई किस्म नहीं है इसमें। क्योंकि जुमला इंशाइया की 10 किस्मों में से कोई एक किस्म भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे कि ये जुमला खबरिया है। और जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं और ये कौन सी किस्म है उनमें से? जुमला खबरिया की दो किस्में, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला फेरिया खबरिया। और ये जुमला इसमिया खबरिया, उसकी अलामत ये है कि इसम इसके शुरू में है, हाँ, अलिफ शुरू लाम। में इसम है। ठीक है जी, शुरू में इसम। अच्छा, जहां पे भी जुमला इसमिया खबरिया होता है तो उसको कैसे पहचानते हैं? उसमें कितना अज्जा होते हैं? दो। दो अज्जा होते हैं।
कौन कौन से? मुस्नद इलैहि मुब्तदा और मुस्नद खबर। हाँ, मुस्नद इलैहि मुब्तदा और मुस्नद खबर। अच्छा, मुस्नद इलैहि है मुब्तदा, तो चूंकि ये मुब्तदा खबर है, लिहाजा इसके पहले जिसको हम मुस्नद इलैहि मुब्तदा बनाएंगे, और बाकी जितने भी अज्जा है इसमें, उन सब को हम क्या बनाएंगे? मुस्नद खबर। खबर। ठीक है जी। तो अब हम इसकी तरकीब करते हैं। अल्हम्दो, ये क्या है? मुस्नद इलैहि है मुब्तदा। अल्हम्दो क्या है मौलवी साहब? मुस्नद इलैहि है मुस्नद इलैहि मुब्तदा। मुब्तदा। लाम हर्फ जर, लाम क्या है? हर्फ हर्फ जर। हर्फ जर। और लफ्ज अल्लाह क्या है? मजरूर। नहीं, मौसूफ। मौसूफ। लफ्ज अल्लाह क्या है? मैंने बताया था कि जहां पे भी दो, तीन, चार, पांच, छह जितने भी इसम जमा हो जाए और सब मारफा हो या सब नाकरा हो और सब मुजक्कर हो या मुअन्नस हो और सब वाहिद हो या सब तस्निया हो या सब जमा हो, और चौथी चीज क्या बताई थी? कि सब पर जबर हो या जेर हो या पेश हो। तो जब ये चार चीजों में मुताबकत पाई जाए, मुआफकत आ जाए, चार चीजों में वो एक जैसे हो, चार अशिया में वो एक जैसे हो, तो ये आपस में क्या होंगे मौलवी साहब? मौसूफ सिफ्त। मौसूफ सिफत। तो देखो, लफ्ज अल्लाह ये मुफरद है, रब ये भी मुफरद है, अर रहमान भी मुफरद है, अर रहीम भी मुफरद है, मालिक यौमिद्दीन भी मुफरद है। अच्छा, लफ्ज अल्लाह मारफा है, तो रब भी मारफा, अल आलमीन, अर रहमान, अर रहीम, मालिक यौमिद्दीन ये भी मारफे हैं। और लफ्ज अल्लाह भी मुजक्कर है, और बाकी जितने अल्फाज इनके सिफात आ रहे हैं वो भी सारे क्या हैं? वो भी सारे क्या हैं? मुजक्कर। मुजक्कर। मुजक्कर है। हाँ, मुजक्कर है। ठीक है जी। तो ये सारे अलामत पाई जाती है किस चीज की? मौसूफ सिफ्त की। मौसूफ सिफत होने की। ठीक है, अब हम करते हैं अल्हम्दो मुस्नद इलैहि मुब्तदा, लाम हर्फ जर, लफ्ज अल्लाह मजरूर, लफ्ज अल्लाह मौसूफ। लफ्ज अल्लाह क्या होगा? मौसूफ। मौसूफ। रब, रब्बिल आलमीन आपस में क्या बनेंगे? मुजाफ मुजाफ। मुजाफ मुजाफ इलैहि। क्यों, कैसे पता चला कि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है? क्योंकि जो पहले इसम है रब्बी, इसके ऊपर ना अलिफ लाम है ना ही तनवीन है। दो बोला करे, ये पूरी बात बोला करे कि जब दो, क्योंकि यहाँ पर दो इसम है, दोनों इसमों में से पहले इसम पर ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है, और दूसरा इसम क्या है? मजरूर है। दूसरा इसम क्या है? मजरूर यानी मजरूर है। मकसूर, और उस पर जेर है। तो कहाँ है जेर? अल आलमीना पर। उस्ताद जी, इसकी जो या हालत जारी है वो या साकिन मा कबल मकसूर के साथ और नून मफ्तूहा के साथ है। इसकी हालत जारी किसके साथ है मौलवी साहब? या 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 नून साकिन मा कबल मकसूर और नून मफ्तूहा के साथ। ठीक है। जो जमा होता है ना, जमा, जमा, जी जी। हाँ, जो जमा मुजक्कर सालिम होता है मौलवी साहब, उसमें हालत जारी यानी उसके मजरूर होने की हालत में रब कैसे होते हैं? या साकिन मा कबल कसरा और नून मफ्तूहा के साथ। शाहनवाज भाई, ये बात अपने साथ नोट कर लिया कर। ठीक है, ये बहुत जी उस्ताद जी। ज्यादा मुफीद तरीन बातें हैं, नोटिस बुक रख लिया करें। तो समझ आ गया कि ये मजरूर है, कैसे मजरूर है? तो रब मुजाफ है, अल आलमीना मुजाफिल है। शाहनवाज भाई, मुजाफ मुजाफिल है मिलकर क्या बनेगा? मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर हाँ, क्या सिमो बनेगा? अ, सिफ्त सिफत बनेगी अव्वल ये। बनेगा सिफ्त अव्वल। लफ्ज अल्लाह मौसूफ के लिए। ये क्या बनेगा? सिफत अव्वल सिफ्त। बनेगा लफ्ज अल्लाह मौसूफ के लिए, क्योंकि इस पर भी जार है और लफ्ज अल्लाह पर भी जार है। लफ्ज अल्लाह भी मारफा है, ये भी मारफा है। समझ आ रही है? रब्बिल जी आलमीन, उस्ताद जी। ये कैसे मारफा है? रब, क्या अलामत है इसमें मारफा होने की? ये अलम है। रब आलम तो नहीं है। उस्ताद जी, जी बोले। मुजाफ मुजाफ
मुजाफ मुजाफ इलैहि आपस में मारिफा बनते हैं, फिर बनते हैं। हाँ, ये मुअर्रफ बेलाम की तरफ मुजाफ है, मार्फा की सात किस्म है ना। जी सर। हाँ, पूरा साल आप पढ़ चुके हैं और दौरे में भी मैंने समझाया था कि मार्फा की जो सात किस्म है ना, उनमें से एक ये भी है कि जो मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ, यानी कोई एसम ऐसे एसम की तरफ मुजाफ हो कि उस एसम पर अलिफ लाम हो, इसको कहते हैं कि मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुजाफ होना। तो ये मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुजाफ है, ठीक है। जी सर। तो ये सिफत अव्वल। अर्रहमान क्या बनेगा? सिफत सिफत सानी। सानी। सिफत सानी। अर्रहीम क्या बनेगा? सिफत सिफत सालिस। सालिस। सिफत सालिस। अच्छा, मालिक यौम दीन की तरकीब कौन करेगा? सर जी मैं कहूँ, जी बोले। मालिक की मुजाफ, हम्म, यौम मुजाफ इलैहि होकर फिर मुजाफ, जी। अद मुजाफ इलैहि, हम्म, दीन मुजाफ, दीन मुजाफ इलैहि, मुजाफ जी, मुजाफ इलैहि मिलकर मालिक के लिए मुजाफ इलैहि, ठीक है। मालिक की मुजाफ यौम दीन मुजाफ इलैहि मिलकर सिफत राबिया। ठीक है, सिफत राबिया। तो मौसूफ अपने तीनों सिफात से मिलकर क्या बनेगा शाहनवाज? मजरूर। मजरूर। जार मजरूर मिलकर ये फिर किसके मुताल्लिक होंगे? अशरहु फेल के। नहीं। अल्हम्दु है ना, तमाम तारीफ है। जी उस्ताद जी। तमाम तारीफें अल्लाह के साथ खास है। यह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए साबित है। साबितुन के मुतालिक भी कर सकते हैं और मुख्तसुन के भी मुतालिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लफ्जों में मौजूद नहीं है, तो साबितुन के साथ भी मुतालिक कर सकते हैं और मुख्तसुन मुताल्लक भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दो, ये जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हो जाएंगे किसके? मुख्तसुन या साबितुन के लिए। साबितुन आसान है, साबितुन सीगा इसमें फाइल के। साबितुन किसके? सीगा इसमें फाइल के। तो साबितुन सीगा इसमें फाइल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबे जुमला होकर, यह हमेशा याद रखे कि इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें तफजील, मस्दर और सिफत मुशब्बा, इनसे शिबे जुमला बनता है, पूरा जुमला नहीं होता। ये शिबे जुमला होता है, जुमले का मुशाबे होता है। तो साबित सीगा इसमें फाइल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबे जुमला होकर ये फिर क्या बनेगा? खबर। खबर बनेगा अल्हम्दु मुब्तदा के लिए। फिर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। जुमला इस्मिया खबरिया। जी, ये मालिक यौम दीन शाहनवाज भाई क्यों इस पर जार है, मालिक पर? ये उस्ताद जी यहाँ पे मुजाफ है। मुजाफ मजरूर होता है। नहीं उस्ताद जी। फिर मालिक पर कसरा क्यों है, जर क्यों है, जेर क्यों है? क्योंकि उस्ताद जी ये सब मजरूर है। भाई सही बात बताओ, क्यों मजरूर है? क्यों का तो पूछ रहा हूं। क्योंकि उस्ताद जी ये सब लफ्ज अल्लाह के लिए मौसूफ है, और लफ्ज ये अल्लाह लफ्ज जो है। ये लफ्ज अल्लाह मौसूफ है, वो मजरूर है, तो ये उसकी सिफत है, तो ये भी मजरूर होगा। क्योंकि मौसूफ सिफत के एराब एक जैसे होते हैं। मौसूफ सिफत के एराब एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसका जवाब ये है। आपसे ताबीर नहीं हो पा रही, बाकी समझ आ रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है जी। अब जी उस्ताद हम इंशाल्लाह कल इसके साथ ये भी हम शामिल करेंगे कि अल्हम्दो पर रफा क्यों है, किन किन लफ्जों पर जबर होना चाहिए, किन लफ्जों पर जेर होना चाहिए, किन लफ्जों पर पेश होना चाहिए, कि रफा कहाँ आता है, नसब कहाँ आता है, जर कहाँ आता है, ठीक है जी। फिर काफी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह इबारत हल करना, ठीक है। कल जी पहली सर। फुर्सत जी। में हम साथ ये भी सुनूंगा मुकम्मल,
اور جو خلاصہ بتایا، جو سمجھایا عبارت حل کرنے کا طریقہ، وہ بھی سنوں گا اور یہ بھی سنوں گا۔ جو ساتھی سنا سکتے ہیں اس میں وائس نوٹ میں سنا سکتے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے، اگر اس کا خلاصہ ریٹن میں بنا کے اور مجھے بھیج دے وہ تو بہت اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول